हाँ, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, the digestive glands, different type of digestive glands are associated with digestive system such as salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands are present in human buccal cavity. Actually they are located on outside of the buccal cavity but opens into buccal cavity. There are 3 pairs of salivary glands on outside of buccal cavity and opens into buccal cavity. सबसे पहले देखते हैं अपन नंबर फर्स्ट, पैरोटिड ग्लैंड्स. They are largest glands located just below the auditory capsule on upper jaw. ऊपरी जबड़े या अपर जॉ पर जो ऑडिटरी कैप्सूल के ठीक नीचे 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स, इनसे निकलने वाली जो डक्ट्स they are called Stenson's duct and they are opens near upper molars. इनसे स्टेंसस डक्ट निकलती हैं जो आगे कहाँ खुलती हैं? अपर मोलर्स के पास में खुलती हैं. सेकंड है submaxillary or submandibular. They are located at the junction of both jaws and the ducts, Wharton's duct are arises from submaxillary glands and they are opens near lower incisors. And third, sublingual glands. They are located below the tongue और इनसे जो डक्ट निकलती हैं रेविनस डक्ट. They are opens near frenulum. तो देखिए देयर आर 3 pairs of salivary glands are associated with human digestive system. They are opens into buccal cavity. The parotid gland, submaxillary gland. Submaxillary glands are also called submandibular glands and sublingual glands. पैरोटिड ग्लैंड अपर जॉ पे ऑडिटरी कैप्सूल के ठीक नीचे और उनसे स्टेंसन डक्ट निकलती है जो अपर मोलर्स के पास में खुलती हैं. सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स जो दोनों जॉ के जंक्शन पे हैं, इनसे वार्टन्स डक्ट निकलती हैं जो लोअर इंसिजर्स के पास में ओपन होती हैं.
और सबलिंगुअल जो टंग के नीचे हैं और इनसे निकलने वाले जो रेविनस डक्ट्स हैं वो फ्रेनुलम मेम्ब्रेन के पास में ओपन होती है। द सीक्रेट सलाइवा, इसमें सलाइवा है। सलाइवा का जो कंटेंट्स हैं वो एक्चुअली अपन मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर भी देखिए, सलाइवा कंटेंट्स water, minerals like sodium, potassium, bicarbonates, chlorides, also contain mucus and lysozyme and salivary amylase enzyme। इनके फंक्शंस जो है वो हम मैकेनिज्म के अंदर पर देखेंगे कि इनके कौन कौन से कंटेंट हैं और उनके क्या फंक्शन है। नेक्स्ट जो ग्लैंड लेते हैं अपन, लीवर। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। In adult, it is about 1.2 to 1.5 kg in weight and located below the diaphragm and attached to diaphragm by help of falciparum ligaments. Falciparum ligaments. It is bilobed structure, but due to presence of falciparum ligaments, it appears for lobe structure। बाइलोब स्ट्रक्चर है, लेकिन फैल्सिपेरम लिगामेंट्स के कारण से ये अपने को कितने लोब में दिखाई दे रहा है? 4 लोब में दिखाई दे रहा है। द गॉल ब्लैडर विच स्टोर्स बाइल इज लोकेटेड बिलो द राइट लोब विच इज द लार्जेस्ट लोब ऑफ द लीवर। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि लीवर की स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन, right lobe, this is gallbladder, cystic duct, right and left, hepatic duct, common bile duct, and common bile duct is open centroduodenum in the form of hepatopancreatic duct. Next, each lobe of liver is consist with number of lobules, number of hepatic lobules, and hepatic lobules are structural and functional unit of liver। तो यहां देखते हैं अपन हेपेटिक लोब्यूल्स।
Each hepatic lobule have a covering of connective tissue called Gleason's capsule. Gleason's capsule, and also have a central vein called central venule, and it lined by endothelium cells, covering of endothelium. It is एंडोथीलियम. एंडोथीलियम के चारों ओर जो हिपेटोसाइट्स है, हिपेटोसाइट्स की दो दो रो होती हैं. कैसे होती है रो? जैसे देखिए, ये जो हिपोटोसाइट्स की जो रो है, इनको अपन बोलते हैं हेपेटिक कॉर्ड, विच आर कंसिस्ट विद हेपेटोसाइट्स. और हेपेटोसाइट्स के बीच में जो ब्लड से फिल्ड जो स्पेस रह गए, इनको बोलते हैं hepatic sinusoids. And hepatic sinusoids have two types of cells. Two types of cells. They are Kupffer cells, and Kupffer cells are phagocytic in nature, and they are adipose cells which store fats. At the each corner of hepatic lobule, there are group of 3 ducts is present. The group of these 3 ducts is called portal triad, and portal triad have a branch of portal vein, branch of hepatic artery, and branch of हेपेटिक डक्ट. यहां पर 3 डक्ट की जो ब्रांच है, इसको अपन बोलेंगे पोर्टल ट्राइड. तो यह है ए लोब्यूल कवरिंग ग्लेसन्स कैप्सूल, उसके चारों ओर ये जो सेल्स लेयर एंडोथीलियम, उसके बाद में हिपेटोसाइट्स की रो हेपेटिक कॉर्ड, और यहां पर कोफर सेल्स
विच आर फैगोसाइटिक इन नेचर, एंड हेपेटोसाइट्स में जो ये सेल्स है एडिपोज सेल्स, दे स्टोर फैट्स, और ये जो ब्लड फिल्ड स्पेस है इनको क्या कहेंगे अपन, हेपेटिक साइनोसॉइड्स। अब लीवर के फंक्शन, दे आर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर। Functions of liver. क्या देखते हैं, glycogenesis, it converts the glucose into ग्लाइकोजन, यानी ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट मीन्स इट कन्वर्ट द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मीन्स ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सच एज एमिनो एसिड्स को भी कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन, इट स्टोर्स फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट इसका फंक्शन है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मीन्स it separates ammonia from एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड से अमोनिया को सेपरेट करता है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डीएमिनेशन। एंड कन्वर्ट द अमोनिया इनटू यूरिया। तो इस मीन्स यूरिया सिंथेसिस है ना, यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय लिवर बाय ए प्रोसेस ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। नेक्स्ट फंक्शन, इट सीक्रेट्स bile juice and bile juice helps in digestion of food. It stores vitamin A, D, E, K and B12. ये विटामिन A, D, E, K और B12 को स्टोर करता है। ऑल्सो एक्ट एज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड। फूड को डिटॉक्सिफाई करता है। तो मेन फंक्शन देखिए, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, स्टोरेज ऑफ फूड, डीएमिनेशन, यूरिया सिंथेसिस, secretion of bile juice, storage of different vitamins and minerals, detoxification of food, and most of the part of yolk is synthesized by liver. यानी योग का भी मैक्सिमम पार्ट है वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, लिवर सिंथेसाइज करता है। इट ऑल्सो स्टोर फैट, फैट को भी स्टोर करता है। इट डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी, डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। एंड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट
इट ऑल्सो एक्ट एज हीमोपोइटिक ऑर्गन, यानी ब्लड सेल्स को फॉर्म भी करता है। यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो क्या कर रहा है, हेमोपोइटिक यानी ब्लड सेल्स को फॉर्म कर रहा है, और उसके बाद में जो डेड आरबीसी है उनको डिस्ट्रॉय करने का फंक्शन भी करता है। कौन? लिवर। तो लिवर के डिफरेंट टाइप के फंक्शंस। थर्ड जो ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे पेनक्रियाज। Pancreas, it is heterocrine gland, acts as both exocrine gland and endocrine gland। यहां पर देखिए the pancreas is consist with number of pancreatic lobes called acini। The acini or pancreatic lobe form about 98 to 99% part of pancreas, and this part secretes pancreatic juice, and pancreatic juice is transported to duodenum through a duct, so that this part is acts as exocrine gland। It means about 98 to 99% part of pancreas is acts as exocrine gland, which secretes pancreatic juice, contains different digestive enzymes, and this pancreatic juice is transported to duodenum through duct, और duct present है, इसका मतलब this part is act as exocrine gland। Next, the in between the pancreatic lobes, the group of different cells is present. The group is islets of Langerhans, and islets of Langerhans have about 3 types of cells. Type of cells, and it form about 1 to 2% part, and this part is endocrine part। It means only 1 से 2% part तो है endocrine, और मैक्सिमम पार्ट क्या है, एक्जोक्राइन। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह के जो सेल्स हैं सबके बारे में देखते हैं। Alpha cells, they secretes a hormone ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करता है। कौन? अल्फा सेल्स। एंड ग्लूकेगॉन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। इट एक्ट्स ऑन एडिपोसाइट्स एंड हिपेटोसाइट्स, यानी इसका वर्क कहाँ पे होता है? लिवर में। लिवर के एडिपोसाइट्स और हिपेटोसाइट्स क्या का काम करता है ये? इट स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ
glycogenolysis and in लीवर। ये लीवर में ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो कुल मिलाकर के अल्फा सेल रिलीज करते हैं ग्लूकेगॉन हार्मोन, और ग्लूकेगॉन हार्मोन है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है कि ये लीवर सेल्स में या लीवर सेल्स को स्टिमुलेट करता है, किसके लिए? ग्लाइकोजिनोलाइसिस के लिए और ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। सेकंड देखते हैं अपन बीटा सेल्स। दे सीक्रेट्स ए हार्मोन insulin, and insulin reduce the blood glucose level। कैसे? it stimulates the process of ग्लाइकोजेनेसिस इन लीवर, यानी ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लाइकोजन में। एंड ऑल्सो रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज, ऑल्सो इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के कंजम्पशन को बढ़ाता है, और जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करता है किसके अंदर? ग्लाइकोजन के अंदर। इसका मतलब इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज एंड द एक्सेस ग्लूकोज इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी विद यूरिन। दिस डिजीज इज कॉल्ड डायबिटीज मेलिटस। यानी शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर क्या होगा? ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और ये जो एक्सिस ग्लूकोज है जो यूरिन के साथ बॉडी से पास आउट होता है, इस डिजीज को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। तो दो तरह के सेल्स आ गए, अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन हार्मोन जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तीसरा देखते हैं अपन, थर्ड जो सेल्स हैं गामा सेल्स और डेल्टा सेल्स। दे सीक्रेट से हार्मोन सोमेटोस्टेनिन, एंड सोमेटोस्टेनिन रेगुलेट्स द डाइजेस्टिव एक्टिविटीज। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। तो यहां पर अपने तीन तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड्स, 3 पेयर्स, और कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और सब लिंगुअल ग्लैंड्स। फिर पढ़ा अपने लिवर, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, और लिवर की स्ट्रक्चर और लिवर के फंक्शन। और फिर पेनक्रियाज, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड जिसका मैक्सिमम पार्ट अबाउट 98 to 99% पार्ट एक्सोक्राइन पार्ट है, जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है कहाँ पर? ड्यूडेनम में। और इन पेनक्रियाटिक जो लोब हैं इनके बीच में पाए जाते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनमें 3 टाइप के सेल्स हैं, और ये पार्ट है एंडोक्राइन पार्ट। इसका मतलब इसका 1 से 2% पार्ट है वो क्या है? एंडोक्राइन पार्ट है, जिनमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स। अल्फा सेल्स ग्लूकेगॉन सीक्रेट करते हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करते हैं जो कि ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इसका मतलब फंक्शन ऑफ बोथ द ग्लूकेगॉन एंड इंसुलिन हार्मोन इज एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। दोनों हार्मोन के फंक्शन क्या हैं? एक दूसरे से एंटागोनिस्टिक हैं। जैसे
जो ग्लूकेगोन हार्मोन है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, तो इंसुलिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को। तो यहाँ पर देखें, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और कौन सी डिजीज होगी, डायबिटीज मेलिटस। और तीसरे सेल्स हैं गामा सेल्स या डेल्टा सेल्स, ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं सोमेटोस्टेनिन, और सोमेटोस्टेनिन है वो डाइजेस्टिव एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और नेक्स्ट चैप्टर में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कौन सा, द मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन, कि फूड डाइजेशन बॉडी के कौन से पार्ट में होगा, एंड विच एंजाइम्स एंड विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में कौन से हार्मोन्स और कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।